اسماعیلی تاریخ میں خوش آمدید۔ آج ہم اسماعیلی ہیرو دائی اور مبلغ ناصر الدین توسی احمد ناصفی کے بارے میں بتائیں گے۔ النصفی کا تعارف۔ سامانی دور کے مشہور اسماعیلی مبلغین میں سے ایک تھے۔ محمد بن احمد النصفی سب سے مشہور اسماعیلی مبلغین میں سے ایک ہیں۔ مبلغ سیدنا حسین ابن علی الامروزی کے شاگرد ہیں۔ وہ خراسان کے فلسفیوں میں سے تھے، ایک خطیب، عالم اور مصنف، اپنی آزادی فکر کے لیے مشہور تھے۔ جب سیدنا حسین ابن علی الامروزی نے شیعہ اسماعیلی عقیدے کو پھیلانا شروع کیا اور سامانی ریاست کے حکمرانوں کو متاثر کیا تو نصر بن احمد سمنی امیر، جو خراسان اور میسوپوٹیمیا کے حکمران اور اسماعیلیت کے مخالف تھے، نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور استاد المعروف سیدنا علی المعروف کو قید کر دیا، اسے مار ڈالا۔ بستر مرگ پر حسین نے ناصفی کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ ٹرانسکسیانہ اور خراسان جائیں اور وہاں کے حکمرانوں کو اسلام قبول کریں۔ حسین کی وفات کے بعد سیدنا النصفی امیر حسین بن علی مرودی کی جیل میں موت کے بعد خراسان میں اسماعیلی دعوت کے ذمہ دار ہوئے۔ ناصفی سامانی حکومت کی اشرافیہ کی ایک بڑی تعداد کو باطنی مذہب میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا۔ سامانی سیاستداں بشمول عشائش خراسان کے خصوصی سیکریٹری ابو منصور چوغانی سامانی دربار کے بزرگوں میں سے ایک اور اتاش خاص خواجہ سرا نے اسماعیلی کال کی طرف راغب کیا۔ ان افراد اور سامانی دربار کے بعض رئیسوں کے اسماعیلی ہونے کے بعد انہوں نے ابو عبداللہ نصفی کی نصر بن احمد سے خوب باتیں کی اور انہیں نصر بن احمد کے قریب کر دیا، جیسے کہ ابو بکر نخشب جو خراسان کے امیر اور ان کے رشتہ دار ابو اشس جو اسپیشل سیکریٹری تھے، ابو منصور حوثی خصوصی سیکریٹری تھے، سین ملک جو آلہ کا گورنر تھا اور علی زردار جو ایک خاص ایجنٹ تھا۔ بالآخر سمنی امیر نصر بن احمد سامانی نے اسماعیلیوں کی دعوت قبول کر لی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ امیر نصر سامانی اندرونی حلقہ میں موجود تھے اور ان کی درخواست پر ناصفی نخشب نے دائی حسین ابن علی مرودی کی موت کے لیے 1,19,000 دینار بطور خونی رقم مولانا قائم علیہ السلام کو بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی، جو مصر کے اسماعیلی شیعہ امام اور فاطمی خلیفہ تھے۔ دائی سیدنا النصفی خراسان کے فلسفیوں میں سے ایک اور علم الہیت کے آدمی تھے، اور در حقیقت ایسا ہی ہے کیونکہ ناصفی کو اسماعیلی فلسفہ کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے نتیجے میں اس نے اسماعیلی فلسفے کی بنیاد ایک قسم کے نو پلاٹونی فلسفے کی بنیاد پر رکھی، جو اسلامی دنیا میں رائج تھا، اور اس کا فلسفیانہ نظام ہجری کی 4 اور 5ویں صدی میں ایران اور خراسان میں اسماعیلیت کا معیار تھا۔ ابو یعقوب سستانی اور حتیٰ کہ ناصر خسرو جیسے مصنفین کے فلسفیانہ عقائد کی بنیاد ان کا فلسفیانہ نظام ہے۔ دائی النصفی، سیدنا ابو یعقوب سستانی، سیدنا حامد الدین کرمانی اور سیدنا مانوی شیرازی اس وقت کے فلسفی علماء میں سے تھے۔ جب شیعہ اسماعیلی امام اور فاطمی خلیفہ امام معیز علیہ السلام مصر تشریف لائے تو ابو عبد الرحمن محمد بن عبداللہ ابن محمد العتیقی جیسا ماہر نجومی ان کے ساتھ تھا۔ امام معیز علیہ السلام کے بعد ابو نجم کو فاطمی خلیفہ امام عزیز علیہ السلام نے بہت زیادہ عزت و تکریم دی۔ النصفی کی تصانیف۔ فصل۔ ابن ندیم نے کائنات کے بارے میں درج ذیل 3 کاموں پر بحث کی ہے۔ مذہب کا عنوان، اسلام قانون کے اصول۔ وہ الدعوۃ النجیہ کو بھی النصفی سے منسوب کرتا ہے۔ نصف کی سب سے مشہور کتاب فصل کی کتاب ہے، اس کا ذکر بغدادی نے کیا ہے۔ اس کتاب نے اسماعیلی مبلغین کی توجہ مبذول کرائی، جیسا کہ ابو حاتم نے اپنی کتاب الاسلام میں اس پر تنقید کی، ابو یعقوب نے اپنی کتاب النصرہ میں اس کی تائید کی، اور کرمانی نے اپنی کتاب الریاض میں دونوں کے درمیان ثالثی کی۔ اس ندیم نے 3 اور کتابیں بھی ان سے منسوب کی ہیں، جن کے نام مذہب کا عنوان، اصول شریعت اور الدعوہ النجی ہیں۔ وسال ٹیموں کے درمیان فرق۔ ڈاکٹر مہدی محقق خواجہ نظام المالک ایران میں اسماعیلیت کا عروج، SM اسٹرن، ترجمہ ڈاکٹر سید حسین نصر۔ مشہور اسماعیلی مفکر نظری خواجہ ناصر الدین توسی کا مختصر تعارف، جو اس وقت کے سب سے بڑے ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے، جو نظری دور کے اسماعیلی مکتب کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے عالم اور مبلغ تھے۔
वो हर किस्म के फ़िक्री और रवायती उलूम बिलखुसूस फ़लसफ़ा, दीनियात और रियाजी में मुनफरद थे, और वो अपने इल्म, फ़हम और हिकमत की वजह से पूरी इस्लामी दुनिया में बहुत मशहूर थे। इस मौके पर उन्हें मास्टर ऑफ ह्यूमैनिटी और 18वें हकीम का खिताब भी दिया गया। ख्वाजा नासिर तूसी 5971201 में पैदा हुए। यूनेस्को ने 2001 को ख्वाजा नासिरुद्दीन इलास्तास की 800 सालगिरह का साल करार दिया है। इस्माइली वो लोग थे जिन्होंने कलाबंद किया था और अकीदतमंद थे, लेकिन इसके साथ साथ वो इल्म से मोहब्बत करने वाले और उलमा की परवरिश करने वाले लोग थे। कोहिस्तान के हुक्मरान नासिरुद्दीन अब्दुर रहीम इब्न इब्बी मंसूर ने, जो खुद इस्माइली अमीरों में से एक नेक और आलम आदमी था, ने ख्वाजा नासिरुद्दीन को कोहिस्तान में मदऊ किया। ख्वाजा नासिरुद्दीन अल-तूसी और उनकी अहलिया अपनी मर्जी और रजामंदी से इस्माइलियों में दाखिल हुए, इस्माइली मजहब को कबूल किया। अपने अपने दिनों को इमाम अलाउद्दीन मोहम्मद और मौलाना रुकन अल-दीन अलैहिस्सलाम की मुसलसल सोहबत और सोबत में मुकम्मल इज्जत व वकार के साथ गुजारा और अपने पीछे बेशकीमत काम छोड़े। अपनी वफात के दौरान इस्माइली नजरी के पास अभी भी इतनी रूहानी कशिश थी कि वो नासिरुद्दीन तूसी जैसे बुलंद पाया और काबिल एहतराम फलसफी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते थे, जिसने अपनी जिंदगी का आगाज 12वें शिया फिरके से किया था। अफजल-उल-दीन काशानी का तालिब इल्म तूसी को बातिन की तालीमात से मुतारिफ कराने वाला पहला शख्स था, और उनके अल्फाज ही ने उन्हें मुतासिर किया। किताब रोज़ा अल-तस्लीम मतबा अल-मोमिन और किताब अल-अखलाक अल-नसीरी इस्माइली अफकार के बातिनी तरीक़ा में हैं, जिनकी तारीफ़ अल्लाह के खलीफा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के इमाम अला-अल-दीन अबू कासिम मोहम्मद बिन उल हसन ने की है। ख्वाजा नासिरुद्दीन तूसी अपने ज़माने के बेशतर उलूम को जानते थे, ख़ास तौर पर फ़िक़्ह, उसूल, हिकमत, दीनियात, मंतिक, रियाजी, फलकियात और अखलाकियात। ख्वाजा की किताबें कीमती और मुफीद दोनों हैं, और इनमें से अक्सर को अपनी तालीफ के आगाज से ही अहल इल्म की पूरी तवज्जो हासिल रही है और उन पर तफसीरें लिखी गई हैं। ख्वाजा की बहुत सी तख्लीकात गैर मुल्की ज़ुबानों जैसे जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, अंग्रेज़ी और लातीनी में तर्जुमा और शाये हो चुकी है। इस्माइली बरादरी पर ख्वाजा की तसानीफ 1 तोला और तबारा 2, मुताबे अल-मोमिनीन 3, इब्तिदा और इख्तिताम 4, नसीरी अखलाक 5, मतबा अखलाक 6, जनाब व सालिक 7, रूदा तस्लीमा मुख्तसर अल-मुसिन किताब मंदरजा ज़ैल लिखा है, से 4 अबवाब के लिहाज से मुख्तसर कर दिया गया ताकि दीन हक के तलबगार उस पर अमल कर सके, और इस किताब का नाम मतबा अल-मोमिनीन रखा गया, और ये आजिज़ाना काम हमारे बुंदों, अजीज़ों और असहाब की सखावत से मंसूब है। अल्लाह उन्हें नेक कामों में कामयाबी अता फरमाए। नमाज खुदा, इसके रसूल और उसके खलीफा की इताअत से गायब रहना है ताकि तुम मुसलसल नमाज में रहो। चौथा रोज़ा है। रोज़ा अल्लाह ताला के हुक्म से अपने सातों आज़ा को ज़ाहिरी और बातनी तौर पर बांधना है। पांचवी ज़िकू ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको अता फरमाया है, इसका 10वां हिस्सा इमाम ज़माना के ख़जाने में देना, मौलाना के हुक्म से किसी मोमिन भाई को देना। छठा जिहाद है। अपनी ख्वाहिशात और ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ना और उनको कत्ल करना जिहाद है। रूह को रद्द कर दिया गया है, इसे रद्द कर दें तो अबदी दुनिया में जगह तलाश करें। सातवां हज है। हज इस फानी घर को छोड़कर अबदी घर की तलाश है। 12 अमामी शिया मकतब फ़िक्र के अकायद का रद्द। ख्वाजा तूसी ने बिदत के मसला को रद्द करते हुए, जो कि 12 अमामी शिया मकतब फ़िक्र के अकायद की बुनियाद है, इस तरह लिखते हैं, इमामिया बिदत को नहीं मानते, और बिदत का दावा सिर्फ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल एक रवायत के ज़रिए किया जाता है, जो कि उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की इमामत के दौरान मरी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इससे इस बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा, खुदा के लिए इस्माइल के मामले में आफत आई है। बदक के मौजू के बारे में सिर्फ एक रवायत है, जो कि वाहिद रवायत है, और एक रवायत इसके इल्म और अमल का बाइस नहीं बनती। ख्वाजा नासिरुद्दीन तूसी, तफसीर अल-मुहसल, तेहरान यूनिवर्सिटी प्रेस 421। ख्वाजा की बेशुमार साइंसी और अदबी तसानीफ महफूज हैं, जिनमें से कुछ का तज़किरा ज़ैल में किया जाता है।
एक अकायद का खुलासा अली मुख्तसर के हवाले की वजाहत मशहूर इस्माइली मुफक्किर नजरी ख्वाजा सरा उलमा और मुबल्लिगीन का तारुफ। इस ज़माने में तमाम फ़िक्री और रिवायती उलूम खुसूसन फ़लसफ़ा, दीनियात और रियाजी के उलूम में उनका इल्म बहुत मशहूर था। इस मौके पर उन्हें मास्टर ऑफ ह्यूमैनिटी और 18वें हकीम का खिताब भी दिया गया। ख्वाजा की बहुत सी तख्लीकात गैर मुल्की ज़ुबानों जैसे जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, अंग्रेज़ी और लातीनी में तर्जुमा और शाये हो चुकी है। इस्माइली बरादरी पर ख्वाजा की तसानीफ़: 1 रिसाला तोला व तबारा, 2 रिसाला मतबा अल-मोमिनीन, 3 इब्तिदा और तकमील, 4 अखलाक नासरी, 5 अखलाक मुहतशम, 6 सेरवाल सलूक, 7 रोद अल तस्लीम अल-मूसियना। किताब तूसी में यूँ लिखा है कि इसे 4 अबवाब के लिहाज से मुख्तसर कर दिया गया ताकि दीन हक के तलबगार इस पर अमल कर सके, और इस मकाले का नाम मतबा अल-मोमिनीन रखा गया। और ये आजिज़ाना तसनीफ़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बंदों, अजीज़ों और असहाब की सखावत से मंसूब है कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जब वो इस मकाले पर गौर करें तो अगर उनको कोई लग़्व अल्फाज या नामुनासिब मानी या गलती नज़र आए तो उन्हें इस आम बंदे की तरफ से इसे नामुकम्मल समझना चाहिए और इसे सस्ती इस्लाह समझकर बावकार अंदाज में शफ़क़त से ढांप लेना चाहिए। अगर अल्फाज खुशनुमा हों और उनका मफ़हूम जगह पर देखें तो ज़िक्र इलाही के वक्त इस पर गौर करें और खुशी से सुनें। इस ज़ईफ़ और आजिज़ को भलाई की याद दिलाएं और मोमिनीन के लिए मतलूबा अबवाब की फ़हरिस्त जो तफसील से दी गई है इस तरह है। बाब अव्वल व आखिर में तोला और तबर्रा की वजाहत पर 388/49 7 सतूनों की वजाहत पर बाब 4 शरीत। खुलासा: बाब दुआम इस्माइली मोमिन का बयान। एक ऐसा गिरोह जो सच्चा मजहब तलाश करता है और अपने आप को इस्माइली समझता है, इसे मोमिन होने की शराइत और इस्माइली के मानी का इल्म होना चाहिए। इस्माइली का मफहूम यह है कि अव्वल वक्त के इमाम की मरिफत इसको हासिल होती है और सबूत सबसे बड़ा सबूत और वो है जो सच्चे उस्ताद के हुक्म और हुक्म के सुपुर्द होता है। दूसरा, कनात का मतलब यह है कि जो चीज़ इसके पास आती है, अच्छा या बुरा, फ़ायदा या नुकसान, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तीसरा, तस्लीम करने का मतलब है सर तस्लीम खम करना और उसके हवाले कर देना कि जो कुछ है और जो कुछ अगले जहान में नहीं होगा इसे कर्ज समझकर उसके सुपुर्द कर देता है, जैसे कि इसकी जान, माल, अहलो अयाल जो सब कर्ज हैं, और बाकी दुनियावी शराइत, ताकि वो मोमिन के दर्जे पर पहुंच जाए। बाब सिवम का खुलासा: तोला और तबरह किसी की तरफ रुजू करने की हकीकत और उसके अलावा किसी को तर्क करने की हकीकत। चौथे बाब का खुलासा: शरीयत के 7 सुतून। पहला, गवाही, और गवाही ये होनी चाहिए कि खुदा इमाम ज़माना को जानता है। दुआम, तहारत। तहारत का मतलब है माजी के मजहब और रवायत को छोड़ना और इमाम ज़माना अलैहि अस्सलाम के हक को जानना और उनके हुक्म की तामील करना। तीसरा, दुआ। नमाज का मतलब है कि खुदा, उसके रसूल और उसके खलीफा की इताअत से गाफिल ना हो ताकि आप मुसलसल नमाज में रहें। चौथा, रोज़ा। रोज़ा का मतलब है अपने सातों आज़ा को ज़ाहिरी और बातनी तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से बांधना। पांचवीं, ज़िकू। ज़िकू का मतलब है जो कुछ खुदा ताला ने आपको दिया है इसका 10वां हिस्सा इमाम ज़माना के ख़जाने में देना, जो कुछ आप मौलाना के हुक्म से किसी मोमिन भाई को देते हैं। छठा, जिहाद। जिहाद का मतलब है अपने नफस और ख्वाहिशात से लड़ना और उनको कत्ल करना। रूह एक मुस्तरद शदा रूह है, इसे रद्द करो, लिहाजा अबदी दुनिया में जगह तलाश करो। सातवां, हज। हज का मतलब इस फानी घर को छोड़कर अबदी घर की तलाश है।